स्टार्टअप करते हो, आपके पास उसके बाद काम आता है, आप ग्रो करते हो, दिस इज द यूजुअल प्रोसेस। आई थिंक मेरे साथ इट वाज क्वाइट द ऑपोजिट। जब काम अपनी पसंद का मिलता है ना, या जब अपने हिसाब से कोई चूज करते हो ना, तो हो जाता है। जब स्टार्ट किया था तो हमने यही सोच के स्टार्ट किया था कि लेट्स सी 1 महीना कर पाते हैं या नहीं, फिर उसके बाद लेट्स सी 3 महीने का टारगेट है, 3 महीना कर पाते हैं या नहीं। स्टोरीज कलेक्ट करना, खुद सोच लेना इज वन थिंग, व्हेन यू गेट इनटू एग्जीक्यूशन दैट इज मार्केट चली जाऊं, कहीं चली जाऊं, मेरी नजर हमेशा वर्ड्स पे, नाम पे, दुकानों के नाम पे, उनकी स्पेलिंग्स पे, ग्रामर पे, इन्हीं चीजों पे होती है। हाय एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। कैसा रहा आज का दिन? संडे जैसा बोरिंग। बोरिंग। तो मैम, how has your own background or experiences influenced your approach to unwrapping levels? Okay, so what I believe is it is ultimate. I mean, for every person, I think it is because of the experiences that they become the person they are. So जो भी उन्होंने सीखा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ultimately that is what is reflected through the personality and through their choices. जहाँ तक मेरी बात है, I have like been in a job. I have moved to start a venture of my own, and I moved to a job again, and I'm again working on I think something of my own. So ये सारे choices या decisions मेरे experience और मेरे exposure का ही result है. This is all because of I think the people that I've met, the kind of encounters that I have had in my life till now, the kind of choices and opportunities that I have got, and the kind of people that have judged me for everything, I think probably everything that I've done. So कहीं ना कहीं ये जरूर आता है that since people start questioning every part of you, you try more to not to get them wrong, but to prove to yourself that no, you can take, you can make better choices, you can make better decisions, you can create something good out of all the negative that is there. So I think unwrapping एक ऐसा ही कह सकते हैं कि आर्ट है, एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो कि एक रिजल्ट है आउट ऑफ ऑल द previous experiences and I think the work that I have done, and I think we all have done. So yes. Okay. So can you share a memorable moment from your own journey of uncovering the stories behind the names? Definitely. I think बहुत सारे होंगे, and since in the initial phase हम लोग भी अप्रोच करते हैं स्टोरीज कलेक्ट करने के लिए, like on social media we can come across some names, चाहे वो national हो, चाहे वो international हो, चाहे वो local हो, like be it from any place, but if we come across names and if we come across some interesting ideas that we can like seek story for, तो हम लोग connect करने की कोशिश करते हैं, and I think this has happened quite a few times with me when I have like chased the social media accounts for months to get a response, उन्हें मैसेज करके, क्वेश्चंस भेज के, रिमाइंडर्स देके कि उन्हें रिस्पॉन्स देना है, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन और रिसर्च करके, just in case to stay updated to them and to show that yes, I'm willing to, I'm genuinely interested to know your part of story. तो ये बहुत बार होता है कि आप अपना पूरा इनपुट प्रिपेयर करके उनके पीछे हाथ पैर धो के पड़ जाते हो कि उनसे आपको तो कंटेंट चाहिए ही, एंड समहाउ मेरा एक होता है ना, मेरा परसेप्शन ये होता था कि हाँ ठीक है, देयर माइट बी समवन हु विल बी हैंडलिंग द सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो जस्ट फॉर रेफरेंस वी डू आस्क कि हाँ ठीक है, आप अपना एक रेफरेंस दे दो, लाइक फॉर आवर रिकॉर्ड, वी एटलीस्ट नो हु वी आर टेकिंग द स्टोरी फ्रॉम. एंड आई थिंक उसमें रिजल्ट ऐसा हुआ है कि मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन दैट आई हैड बीन इन टॉक विद द फाउंडर्स देमसेल्व्स, and they were the person who were handling their own social media, and I think वो थोड़ा funny भी होता है, no doubt, जब आप बाद में याद करते हो तो on the spot थोड़ा embarrassing भी होता है कि आप एक होता है ना, कुछ टाइम से जिसको इतना परेशान करते वो कोई जनरल एम्प्लॉई या कोई जनरल टीम मेंबर नहीं था, वो that was the person who is actually behind that source. So वो भी चीज होता है. So I think it has been a mix of different kinds of experiences, stories collect करने के I think process में. So what motivates you to dedicate your time and energy to the projects like Unwrapping Levels? See, for me it is mostly about staying busy.
I have never liked sitting idle. And when I say sitting idle, it is not just like being busy doing anything. Being busy is staying productive. And I think that is best when you stay productive with work that you choose for yourself. So that is what I want to do. And मेरे लिए obviously unwrapping labels यहाँ पे एक project नहीं है. It is like something which I'm investing my time in, my ideas, and I think ये एक ऐसी initiative होने वाली है which is going to which I want to change into a kind of a landmark. कि आगे चल के ये एक ऐसा एक माइलस्टोन होता है जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, फॉर द पीपल हु कम इन टू कॉन्टैक्ट विद अस, उनके लिए भी एक आई थिंक एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस डेफिनेटली हो. So for me, this is enough to prioritize time. And I think I've always chosen to be multitasker. मेरा single-minded focus नहीं रहा है कभी. मेरे पास जितना ज्यादा काम होता है मेरे लिए उतना easy होता है उनको prioritize करके manage करना. So yeah, I think that is how I have been into working things out. Definitely hard work leads to success. Obviously, yes, of course. आपको अचानक से ये आइडिया कैसे आया कि नेमिंग जर्नी को एज अ बेस आप एक वेंचर स्टार्ट कर सकते? आई थिंक इसमें ऐसा है ना कि वेंचर बनाने का कोई प्लान इसका नहीं था. अलग अलग आइडियाज थे जो मिक्स होकर के अनरैपिंग लेबल्स बन गए. जैसे जब आईटी कंपनी से काम करते करते एक होता है ना कि वहां पे ये था कि एक कुछ अपना करना है, ये एक सेटअप अपना करना है, ये एक पार्ट ऑफ आइडिया था. दूसरा पार्ट ऑफ आइडिया ये था कि जो वहां पे हमारी एक टीम थी, उस टीम उसमें से सारे लोग नहीं, बट हाँ कुछ लोगों को लेकर के डेफिनेटली मेरे दिमाग में ये था कि फॉर अ लॉन्गर टर्म आई वांट दिस टीम टू बी अ पार्ट ऑफ माय वर्क. चाहे मैं अभी करूं, चाहे मैं किसी और फॉर्म में करूं, किसी भी वेंचर के नाम पे आगे आई वांट दिस थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय वर्क. ये एक प्लान था. एंड देन आई थिंक तीसरा जो है ये नेमिंग, तो कहीं ना कहीं ऐसा था कि आइडिया ये नहीं था कि कंटेंट में ही जाना है. आइडिया वाज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. जब ये हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया, उससे पहले जो ऋषिकेश ट्रिप था मेरी फैमिली के साथ में, दैट इज व्हेन दिस कंटेंट आइडिया केम अप. और मैंने ये सारी चीजों को मिक्सअप करके जो है किया कि भाई एक होता ना वेंचर भी करना ही है, टीम भी है ही, तो फिर बस आइडिया की कमी थी, आइडिया भी आई गया, तो आई थिंक लेट्स वर्क दिस आउट. बस वैसे ही आई थिंक सब आइडियाज को मिक्सअप करके जो है एग्जीक्यूशन में डाल दिया. एंड इट इज लाइक मोस्टली अबाउट टीम जब होती है आपके पास, तो टीम में क्या होता है कि यू हैव दिस ओन सेट ऑफ एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ होता है. एंड इट्स नॉट जस्ट कोऑर्डिनेशन, इट्स द काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट यू पुट इनटू द पीपल दैट यू नो. कि एफिशिएंसी होना या एलिजिबिलिटी होना इज वन थिंग, बट अगर कोई इंसान एफर्ट लेने को तैयार है तो उसे जो नहीं आता है वो काम वो भी कर लेता है, चाहे वो सीख के करे, चाहे वो किसी को देख के करे, बट वो उस चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देता है. So I think if you invest in people, people will give results which are beyond your expectations. तो बस यहाँ पे ये था कि लोग मेरे दिमाग में थे, अपना कुछ करना है, ये था आइडिया के साथ मिक्स करके. आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, पुटिंग इट टू एग्जीक्यूशन. So मैम, एज यू मेंशन कि आपकी पहले की एक टीम थी जो आपके दिमाग में थी, तो आपने उस टीम में से कुछ लोगों को तो लिया है. अभी और कितने ऐसे लोग हैं जो बाकी है जो आपको ऐड करना है उस टीम से? कुछ लोग हैं, नो डाउट. आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में भी उनको ट्राई किया, बट अभी थोड़े से लिमिटेशंस हैं, बिकॉज आई कैन नॉट ब्रिंग ऑल द पीपल टू फुल टाइम वर्क विथ मी, क्योंकि शायद अभी हमारी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है. अभी हमारे पास वी आर जस्ट स्टार्टिंग आउट. जिनको रखना है उनके पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए अभी वो लोग दिमाग में हैं. आगे मतलब टारगेट तो यही है कि जिस दिन एक टाइम आए जब वो मेरी कैपेसिटी हो कि लाइक 2-3 लोग और हैं जिनको मुझे डालना है, तो बस वो पेइंग कैपेसिटी लेके आनी है कि ये इस लायक हो जाए कि मैं उनको भी ऐड कर पाऊं. एंड आई गिव देम द सेम इंडिपेंडेंट चार्ज जो अभी के लोगों के पास में है, उस तरह से उनको भी एक जो है उनका इंडिपेंडेंट चार्ज दे करके, एंड लाइक
I let them free कि आप हैंडल करो. So I think हाँ 2-3 लोग और हैं जिनको मुझे ऐड करना है. Let's see how soon I can add them to the team. आपके पास इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज थे पहले भी और कल भी, तो आप अपने आपने जो भी वर्क किया तो आप उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, लाइक पर्टिकुलर एक एक्सपीरियंस. जैसे आपने पहले कॉलेज में एज अ प्रोफेसर काम किया, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड देन आपने जो अपनी खुद की कंपनी, देन अभी ये, एंड आप ऑलरेडी और एक जगह पर वर्किंग है, तो एक्सपीरियंस बताइए अपना. सरप्राइजिंग ये है कि अपॉर्चुनिटीज से है कि अभी रिकॉर्डिंग के थोड़ी देर पहले की बात है. आई थिंक जहाँ पे रांची में बात चल रही थी वो दे आर लाइक स्टिल सीकिंग मी आउट, दे वांट मी टू बी देयर, बट टाइमिंग और कैलकुलेशंस हमेशा ऐसे होते हैं ना कि यू कैन नॉट बी एवरीवेयर एट वन पर्टिकुलर टाइम. आपकी अपनी लाइफ को लेके कुछ प्लानिंग होती है, आपके कुछ अपने टारगेट्स होते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, उसमें जो प्लान फिट होता है वो आप करते हो. अदरवाइज यू नीड टू लाइक यू नो फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन. तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है तो का काम या टीचिंग वाला पार्ट वाज नॉट द फर्स्ट दैट आई हैड टेकन अप. आई स्टार्टेड, मतलब मैं अगर पार्ट टाइम से बिल्कुल याद करूं तो आई स्टार्टेड वर्किंग राइट फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर ऑफ माई ग्रेजुएशन व्हिच वाज 2012 जनवरी. के बाद फिर फर्स्ट फुल टाइम जॉब जो मेरी गवर्नमेंट जॉब की क्लरिकल लेवल पे थी, बट देन आई लेफ्ट इट अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन. तो जॉब्स रहे हैं, टीचिंग में तो इंटरेस्ट है हमेशा से. आई थिंक अगर मैं अपना 60 साल वाला फेज देखूं तो आई थिंक इवेंचुअली आई विल मूव इनटू टीचिंग अगेन. बट हाँ, एक्सपीरियंसेस नो डाउट हर तरह का अब है मेरे पास. कॉर्पोरेट भी है, टीचिंग भी है, गवर्नमेंट एक जॉब का भी एक्सपीरियंस है, अपने सेटअप का भी है. अभी लाइक आई मीन टू नॉन एकेडमिक सेक्शन, तो नॉन एकेडमिक का भी एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो रहा है. सो आई थिंक किसी के लिए डिसएडवांटेज हो, बट मेरे लिए तो डेफिनेटली एडवांटेज है, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई एम हैविंग, दिस इज डेफिनेटली giving me an exposure of different levels. As you said that you had worked a government job during your master degrees and all. So did you face any challenges balancing your studies for your master degrees with your government job, and how did you manage your time effectively with that? Actually, I got the government job when I was in graduation final semester. So that was into a Naxalite area. Adventurous काफी था, because I used to take classes in college and then I used to drive to the area that was like from my home it was around 30 kilometers. So I used to drive there and then I think I did that for 1.5 years. So masters की preparation मैंने उस time पे की थी entrance की. फिर admission के time पे मैंने study leave ले लिया था and masters करने के बाद that was a choice again कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं. तो जॉब, गवर्नमेंट जॉब जब लिया था तो वो भी एक चॉइस थी, बिकॉज एट दैट टाइम आई थॉट कि शायद नीड पड़ सकती है, तो मैंने ले लिया था. लेकिन अकॉर्डिंग हाँ, माई मदर नेवर वांटेड मी टू टेक दैट जॉब अप बिकॉज शी फेल्ट दैट इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू माय लाइकिंग और अकॉर्डिंग टू माय क्वालिफिकेशंस. तो इसीलिए फिर समहाउ एक ये डिसीजन था कि लाइक आफ्टर माय मास्टर्स आई क्विट दैट जॉब. एंड इनसे ज्यादा आई थिंक इशू यहाँ पे ये रहा है कि मेरे चॉइसेस कैसे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो हाँ, ये मतलब ऐसा है कि चैलेंजेस इस टर्म्स में होते हैं कि आप कब आपके सामने सिचुएशन कैसी है, आप वहाँ पे क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हो. अगर आप सिर्फ जॉब देखते कि सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो शायद आप आई थिंक कन्वेंशनली अगर देखा जाए या लोग एक इजी तरीका देखे तो मेरे लिए वो आसान होता. अगर आई वुड हैव कंटिन्यूड दैट जॉब, आई वुड हैव बीन अर्निंग वेल, आई वुड हैव बीन स्टेबल इन द गवर्नमेंट जॉब. बट मेरी चॉइस इसलिए नहीं थी बिकॉज दैट वाज नॉट आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई वांटेड टू डू. तो इसीलिए मेरे लिए चैलेंज वहां पे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता कि आई वांट टू डू व्हिच आई लाइक. कुछ मेरे इंटरेस्ट का होना चाहिए, कुछ मेरे जैसा काम करना है वैसा होना चाहिए. तो आई वुड हैव नो डाउट कंटिन्यू, बट हाँ, क्विट करना इसीलिए वहां पे चॉइस था. Okay, so one more question I'm adding.
that can you elaborate on why you want to return to teaching in the long run? तो मुझे आज भी लोग बहुत चिढ़ाते हैं. मैं when I was very young, and when we I mean my father was posted in I think West Bengal at that time. So West East Singhbhum at that time, around I think before Jharkhand and Bihar got divided. So when I was very young, I used to collect all the kids of my colony and I used to teach them. So बहुत पहले से लोगों का ये रहता है कि इसको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है. And I think somehow I have always felt a different level of connection while teaching students. तो वो इसलिए मेरे आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे हैबिट में या मेरे नेचर में वो चीज है दैट आई हैव ऑलवेज डेवलप्ड एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स टीचिंग पार्ट. तो नेट भी मेरा जब 2016 में क्लियर हुआ था, सो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये था कि हाँ ठीक है, आई वांट टू डू गो इनटू टीचिंग, और फिर देख लेंगे आगे कैसे क्या मूव होता है. बट ठीक है, अल्टीमेटली सिचुएशंस डिफर, चॉइसेस आपके जो है वो टाइम के साथ थोड़ा अकोमोडेट करना पड़ता है. तो आई थिंक स्ट्रेड अवे फ्रॉम दैट टीचिंग लाइन. लेकिन हाँ, वो वापस जाने का प्लान इसलिए है बिकॉज इवेंचुअली प्रायोरिटी में एक पार्ट ये भी है कि अपनी लाइकिंग वाला जब काम करना है तो इवेंचुअली वो फिर इसलिए आई विल डेफिनेटली मूव बैक टू आई थिंक, एंड दैट विल बी द मोस्ट स्पेशल पार्ट, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे ज्यादा क्लोज होगा. आई थिंक आई हैव फेल्ट द मोस्ट कंफर्टेबल अमंग स्टूडेंट्स, चाहे वो कैसे भी बच्चे हो. तो इसलिए आई थिंक दैट इज अ सेफ जोन फॉर मी. एट प्रेजेंट विद दिस वेंचर अनरैपिंग लेबल्स, इसमें आपको ऐसा क्या मिला जो बाकी के जॉब्स में आपने फील नहीं किया अब तक? जॉब्स के नहीं, ये तो मुझे लगता है कि मुझे पिछली वेंचर में भी नहीं मिला. एंड आई थिंक दैट इज अ बिट ऑफ फ्रीडम इसलिए क्योंकि इट्स नॉट, आई वोंट से, एक होता है ना इसमें आप कंट्रोल, अथॉरिटी, चार्ज और बहुत सारी चीजें इंसान कह सकता है, बट फॉर मी इट्स नॉट दैट. It's about freedom in terms of being considered that you have an opinion and you can, implement and execute things on your own. आप रिस्क, नो डाउट, जब आप आप जब अपना काम कर रहे हो तो रिस्क हर जगह है. जॉब में भी रिस्क होती है, बिजनेस में भी रिस्क है, नो डाउट. And when you take decisions, you are aware that you are taking risk, and then you are probably taking decision by calculating those risk factors. लेकिन जब लोग आप पे वो भरोसा नहीं दिखाते हैं या खुद रिस्क लेने पे जो है उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है, बट दे आर नॉट विलिंग टू पुट देयर ट्रस्ट इन यू, वो चीज मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है. और इसीलिए शायद ये वेंचर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट फ्रीडम, आई वॉन्ट पीपल टू ट्रस्ट मी, आई डू दैट फॉर यू. When I trust people, I give them the freedom, I give them the liberty to do things as per their convenience. जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनका रिसर्च एबिलिटी है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो. बिकॉज हो सकता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो तरीका अलग हो जो आप सोच रहे हो उससे, and you can definitely do better from what I am thinking. And you will not be able to understand that till you give them that freedom to practice. So ultimately, for me, it's about the freedom of choosing to do things your way. Be it any situation, dedication आपको कितना दिखाना ये तो आप डिसाइड करोगे. तो आपको क्या चाहिए, वो फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से चीजें चूज करो, अपने हिसाब से डिसाइड करो, अपनी टीम, अपने काम को मैनेज करो. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज व्हाट आई वांट टू क्रिएट एज अ वैल्यू फॉर माय टीम. जो अभी है और जो आने वाले हैं, मैं उनके लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहती हूं. तुम फ्री हो, तुम बता सकते हो, तुम वो करो. कैसे करना है वो हम मिलवा के देख लेंगे, या अगर आपसे हो पाएगा आप करो, आपसे जहां नहीं हो पाएगा आप बताओ, सब मिलकर कर लेंगे. तो दिस इज व्हाट आई थिंक I want to. So, ma'am, actually आपको बहुत सारे experiences हैं, तो like good and bad experiences हमेशा होते हैं. So I want you to share a story which was very worse in your life, but still you had overcome that. तो बहुत सारे हैं obviously, and I think अब तो इतना टाइम हो गया है कि you also have seen me for quite a few years now. So I think बहुत
आई मीन क्या बताऊँ, आई थिंक वर्ड्स विल ऑलवेज बी लेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो माय लाइफ इज अ वंडर इन इटसेल्फ, बिकॉज नॉर्मल लोगों के लिए अगर लाइफ में 10 दिक्कतें होती है एक दिन भर में, तो मेरे लिए वो 100 के काउंट में होगी, बिकॉज every time I think that yes, this is like fine now, I have like been able to I've got this work done, this is like fine now, let's move on to the next, and then something pops up again. So for me it's a struggle on a daily basis for even smaller tasks, because I think there I mean tough choices come up for me, और मेरे लिए शायद वो लोग आई थिंक मैं वो लाइफ देखना चाहती हूँ जहाँ पे या तो लोगों के पास दिक्कतें नहीं हैं, अगर हैं तो वो बहुत इजीली मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ यूजुअली ऐसा होता है कि मैं जब लोगों के प्रॉब्लम्स जनरली अपने अगल बगल में सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है, या मैं तो ऐसे इस तरह के मेरे साथ दिन में 10 दिक्कत हो जाती है. So considering, I mean, obviously, I think this may sound very controversial according to people and on the basis of experiences that people have. लेकिन ये एक फैक्ट है कि हाँ, मुझे कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम ज्यादा है. हो सकता है मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे लोगों के पास, नो डाउट, पॉसिबल है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की लाइफ है, हर कुछ पॉसिबल है. लेकिन आई थिंक जो मैंने पहले कहा था, द बेस्ट पार्ट इज कीपिंग बिजी, और मेरे लिए एक वर्स्ट मोमेंट नहीं है, मेरे लिए देयर हैव बीन सीरीज ऑफ बैड मोमेंट्स जहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जो आपके काम आता है, बट अगर आप इफ यू कीप अप योर होप एंड इफ यू ट्रस्ट, ना कोई डेफिनेटली आपके साथ होता है, एंड दैट इज अ वे हाउ गॉड्स मिरेकल वर्क, because you will find that there will always be someone who is there. आप एक्सपेक्ट करें ना करें, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपके कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, बट गॉड फाइंड्स अ वे टू पुट पीपल बिहाइंड यू. एक वो सपोर्ट होता है, और दूसरा ये कि आप जस्ट स्टे बिजी. काम है, एंगेज करना है छोटी मोटी एक्टिविटीज में, जैसे एंगेज करना है अपने आप को एंगेज करो, दैट इज द बेस्ट वे टू गेट ऑन थिंग्स. देयर इज नो अदर वे. तो ऐसा कोई मंत्र है आपके पास, आपके जो वो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए? Close your eyes, take a deep breath, and if you want to cry, just give it a cry. But ultimately you need to make yourself believe that you are the one who is stronger. It's not the situation, it's not the conditions that is there around you, it's not someone who is saying something about you. कुछ भी strong नहीं है, strong ultimately आप हो, क्योंकि आपने पहले भी शायद किसी की ऐसी 10 बातें सुनी होंगी, आज भी सुन रहे हो, कल भी शायद 10 के बदले 100 सुनोगे, लेकिन if you choose to move on, that is what is going to work for you. So एक होता है just breathe and let it go. That is the best that you can do, and I think this works. अनुलोम विलोम सकते हो. तो आप अपने लाइफ की कुछ खट्टी मीठी यादें शेयर करना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी खट्टा भी नहीं है, कुछ मीठा भी नहीं है. आई हैव ऑलवेज लाइक थिंग्स सो स्पाइसी, एंड दैट्स हाउ माय लाइफ. कुछ पूछ लो मुझसे डायरेक्टली, तो मेरे पास शायद कुछ हो बताने के लिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मेरे पास ऐसा सच स्पेसिफिक कुछ है शेयर करने के लिए. तो आप मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक्चुअल में किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारा एंड लिटरली मारने पर आ गए हो? I have never done that. I have never done that. क्योंकि कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने वो मेरी बहुत बार सिचुएशन ऐसे हुए हैं कि मेरा किसी एक फैक्टर की वजह से या तो मूड खराब रहा हो, या फिर आई हैव बीन इन अ बैड टेम्पर, आई हैव बीन लाइक नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, लेकिन मैंने उस चीज को कभी भी किसी दूसरी चीज पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो. एंड एक चीज जो मुझे हमेशा लगती है वो ये है ना कि अगर मुझे खुद पे जो चीज अच्छी नहीं लगती है, मैं वो दूसरे के साथ कभी नहीं करती हूँ. आई डोंट प्रेफर डूइंग थिंग्स दैट वे, एंड मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगता कि कोई कभी किसी और चीज का गुस्सा मुझ पे निकाले, या कभी किसी और चीज का मूड खराब है वो मुझ पे एक होता ना उसका इम्पैक्ट मुझ पे दिखे. टॉक इट आउट rather than showing the effect of one bad moment. At least just sit and talk it down. That will be a better way.
you'll get a release, you'll be able to express yourself, आप अपने दिमाग को फ्री कर पाओगे. तो मैंने ये काम कभी नहीं किया, and I don't think I'll ever do that. As mothers has vital role in our life, so today is Mother's Day. I want to ask you that कि आप अपने मदर के बारे में कुछ लाइंस बताएं, उनके गाइडेंस के बारे में बताएं, या whatever you feel like you can share with us your experience with your mother. I don't have much to say about her. Honestly, एक फैमिली में होता है ना, यूजुअली हर कोई किसी ना किसी से क्लोज होता है. आई थिंक आई हैव बीन वेरी डिफरेंट बाय नेचर पर्सनली. मैं अपने घर पे शायद किसी एक होता है ना, मेरा नेचर किसी से भी मैच नहीं करता, जैसा लाइक माय मदर ऑलवेज सेज. एंड आई थिंक आई वोंट से मच. आई जस्ट probably maybe one day I just want to like I don't know how to like put it in words, but हाँ, एक दिन उसको शायद मेरा हर काम समझ भी नहीं आता है, because obviously she has different level of exposure. हमारा exposure अलग है, हमारा काम अलग है, उनका अलग है. तो एटलीस्ट किसी दिन आपका नाम और आपका काम वो ऐसा हो कि उसको देख के ये लगे कि योर मदर फील्स कि हाँ इसने कुछ किया है. That is the only thing that probably I maybe dream of having it, because I don't know how much of it is practically possible. I'm trying for it, but I think that is the only thing that I'll say. हर किसी के सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी या कुछ ना कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं. तो आप आज जिस मकाम पे हो, इसके पीछे की स्टोरी इंस्पिरेशन क्या है, हमारे साथ आप शेयर कीजिए. बिल्कुल. आई थिंक आई बिलीव इन एवरीडे सक्सेस. इसलिए क्योंकि देयर आर सम थिंग्स दैट मे बी पीपल हैव सेड टू मी और दैट आई हैव हर्ड, जो मैं नहीं भूली हूँ कभी. जिसमें से एक ये है कि व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, हमारी एचओडी थी सीमा मैम, एंड आई थिंक admire her for a lot of things, and she once said, like we were having some discussion on a topic, and जिसमें कि उन्होंने कहा था कि the topic was like what is success for you. So different people had different opinions about it, and what she said was कि सक्सेस कोई एक होता है ना, एक लिमिटेड, एक डिफाइंड एसेट नहीं है. वो कुछ भी हो सकता है. आपके लिए पैसे कमाना सक्सेस हो सकता है, आपके लिए आपके टारगेट्स को अचीव करना सक्सेस हो सकता है. किसी के लिए अगर दिन भर में बहुत मुश्किल है तो वो 2 टाइम का अगर खाना अरेंज कर पा रहा है, उसके लिए वो भी सक्सेस हो सकता है. सो इट्स अल्टीमेटली एन अ विजन ऑफ योरसेल्फ, of how you want things to be, of what you want to get. तो सक्सेस आपके लिए कुछ भी हो सकता है. It's like not something tangible necessarily. It's not something which is in your bank account. तो आपके लिए कोई भी छोटा गोल अचीव करना हो सकता है, because if someone is struggling on a daily basis, उसके लिए just getting through that day can also be a success. So this is, I think, मेरे लिए यही चीज काम करती है. People themselves a lot for things that don't happen. लेकिन even I do that sometimes. लेकिन मेरे साथ ये है ना कि I do try to keep this in mind, what ma'am said, कि ultimately even getting through a day successfully or getting through a day without any without any hazard, without any damage, without any problem, that is also success. So I think that is something which keeps me motivated every time. And I think that is how I have kept myself going. और मेरे लिए जो है कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि आप एक बार गिरो, 2 बार गिरो, आपको पता है कि आप वापस खड़े हो जाओगे, के लिए वो ही सक्सेस है. एंड आई थिंक दैट देयर इज नो अदर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू, कि आपको गिरने से डर नहीं लग रहा है, आपको पता है कि आप गिरोगे तो आप वापस खड़े हो जाओगे. अगर मैंने एक बार ये किया है तो आई थिंक आई कैन डू दैट अगेन. So ma'am, when you get stuck with the idea of conducting tables, so आपको ऐसे क्यों लगा कि मैं और आप ही लाइक टीम का हिस्सा बन सकते? मतलब जैसे आपने पहले मेंशन किया कि आपके दिमाग में एक ड्रीम टीम थी, तो सिर्फ इसलिए कि वो ड्रीम टीम थी या फिर कोई और रीजन थी? नहीं, ड्रीम टीम डेफिनेटली है. और मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी बार नहीं, बट हाँ मैंने कभी कभार ये छेड़ा जरूर है टॉपिक.
जो कुछ लोग हैं मेरे दिमाग में जिनको मुझे अपनी टीम में रखना है, उनमें से तुम लोग दोनों की एक पार्ट हो डेफिनेटली, बिकॉज यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ एंड दोनों की अपनी स्ट्रेंथ, की अपनी वीकनेस है। तुम लोग दोनों अपने अपने एक होता है ना जो टास्क है उसको लेकर के, यू मे नॉट बी वेरी आई थिंक एफिशिएंट, यू मे नॉट बी एक्सपर्ट, जो एफर्ट डालते हो मेरे लिए वो काफी होता है और आई थिंक वो ही जरूरी है। तो हाँ, और एक होता है ना कि जैसे कुछ लोगों को मुझे अफोर्ड करना पड़ेगा, तुम लोगों को मुझे पता है कि आई कैन अफोर्ड एंड यू विल बी विलिंग टू टेक दैट रिस्क विथ मी। इसीलिए आई थिंक यू वर द फर्स्ट टू पीपल हु आई गॉट इन टच विथ व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट दिस एंड आई थिंक अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा है। आई थिंक विल मेक दिस वर्क समहाउ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग दिमाग में किसी के ये तो नहीं है कि कैसे चलाएंगे, ये है चला लेंगे, टाइम कितना लगेगा ये देखना है बस। तो आई थिंक या विल मेक दिस वर्क। तो आप अपनी कुछ हॉबीज के बारे में बताइए, लाइक कुकिंग, ड्राइविंग और घूमना या राइटिंग। हॉबीज नहीं है, आई थिंक मेरा मूड होता है, जब मूड कर जाए जो करने का वो कर लो। और आजकल तो मुझे लगता है कि आई थिंक फॉर द पास्ट सम टाइम आई हैव डेवलप्ड न्यू हॉबीज एंड इंटरेस्ट ऑफ लाइक डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ द ब्लू। हाँ, यूजुअल कुछ इंटरेस्ट हैं मेरे, जैसे लाइक आई हैव ऑलवेज लव्ड रीडिंग, आई हैव ऑलवेज लव्ड राइटिंग। कोई स्पेसिफिक जॉनर या कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट फॉर्म नहीं होता है, बट हाँ, इफ आई राइट एनीथिंग, चाहे वो पोएम हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। आई लाइक राइटिंग। रीडिंग में भी मेरे साथ वैसा ही है, कुछ कोई भी नॉवल हो, फिक्शन हो, आर्टिकल हो, बायोग्राफी हो, बी इट एनीथिंग, आई लाइक रीडिंग। आई फाइंड गुड मटेरियल व्हिच आई कैन रीड एंड आई थिंक दैट आई डू दैट ओकेजनली। पिछले कुछ टाइम से थोड़ा ट्रैवलिंग का मुझे शौक आया है। ड्राइविंग तो आई थिंक आई हैव ऑलवेज लव ड्राइविंग। मैं हूँ और मुझे बस अगर एक कार मिल जाए तो आई थिंक फिर आई थिंक आई विल बी ऑन रोड ऑल द टाइम। I think that is what a part of my future is going to look like after at least some years. So I think yeah, this is what my interest is. थोड़ी बहुत cutting अच्छी लगती है बट आती नहीं है बहुत ज्यादा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी सीख लेंगे टाइम के साथ। Any kind of art interested? अरे, Are you interested in any kind of art like sketching, painting? अच्छा तो बहुत कुछ लगता है बट हर कुछ आए ये जरूरी नहीं है। अब बनाना, स्केचिंग करना तो बहुत अच्छी बात है, बट बनाओ कुछ और, बन जाए कुछ और तो रोटी गोल रोटी बनाने के नाम पे श्रीलंका का नक्शा बनाने जैसा स्केचिंग हो जाएगा फिर। RA25 भी आपका एक ट्यूटरिंग वेंचर था, तो उसके बारे में आप कुछ मेमोरी शेयर कीजिए, या आप कहाँ हैं और या फिर आप उस चीज को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? ओके, तो this will also always be a special part because आप काम स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपके पास या आप कुछ स्टार्टअप करते हो, आपके पास उसके बाद काम आता है, आप ग्रो करते हो। दिस इज द यूजुअल प्रोसेस। आई थिंक मेरे साथ it was quite the opposite because when I started teaching and when I was about to leave that college to join somewhere else, I think I was swarmed with so many students कि सबको घर पे बुला के पढ़ाना तो almost impossible था, and I think it was because of that reason that we had to take up some space and start this, क्योंकि वही बात है, वो टीचिंग का इंटरेस्ट तो हमेशा से था ही, और एक प्लान उस टाइम पे ये भी था कि चलो फिर कुछ अपना करना है तो एक बार को ये ट्राई करके देख लेते हैं। तो आई थिंक अंडर RA25 वी हैव टेकन फिजिकल क्लासेस, वर्चुअल सेशंस लिए हैं। जरूर है कि अभी मे बी कुछ ब्रेक है, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो समथिंग विच आई एम वर्किंग ऑन अगेन एंड हाँ, ये भी डेफिनेटली आई थिंक कुछ टाइम में जरूर मे बी ये भी एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि व्हेन यू टेक अ स्टेप बैक इट इज नॉट ऑलवेज फॉर बैड रीजंस। व्हेन यू टेक अ स्टेप बैक देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट यू कैन टेक 10 steps ahead. So yes, I am planning to take it that way. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपके पास प्रेजेंटली आप एक जॉब कर रहे हो, उसके बाद इस वेंचर को संभाल रहे हो, एंड आपके पास मतलब लिस्ट ऑफ वर्क्स होते हैं ना, स्क्रिप्टिंग करना है, वॉइसिंग करना है, या फिर कोई काम करके दे रहा तो उसको चेकआउट करना है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू डू और नॉट,
तो वो सारी चीजें आप कैसे मैनेज करते हो? जब काम अपनी पसंद का मिलता है ना, या जब अपने हिसाब से कोई चूज करते हो ना, तो हो जाता है। और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हो, क्योंकि आप लोग भी वही काम कर रहे हो। और मुझे लगता है दिन भर ज्यादा एंगेज्ड हो, तो हम लोग सब इक्वली अपने अपने लेवल पे कहीं ना कहीं, सिर्फ एम्प्लॉयड वाली बात नहीं होती है, एंगेज्ड हर कोई है अपने लेवल पे, चाहे वो घर पे हो, बाहर हो, किसी भी फॉर्म में हो, बट हर कोई एंगेज्ड है। अगर फिर भी वो किसी काम के लिए टाइम निकाल पा रहा है, तो मतलब उसके पास इंटरेस्ट है जरूर, वो डेफिनेटली उसमें कुछ तो इन्वॉल्व है, तभी वो कर पा रहा है। एंड आई थिंक या वी आर ऑल डूइंग दैट। और अकेले मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए मोटिवेशन ये है कि अगर मैं कहीं कम हूं तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग के पास अगर कभी कम होता है तो मुझे लगता है मैं इनपुट दे दूं वहां पे, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो हाँ ठीक है, आई थिंक वी आर वर्किंग इट आउट। वो चल रहा है, आई थिंक ऐसे चलेगा और वो बैलेंस हो जाएगा सब। जो हमारा पहला फेज था पॉडकास्ट का, तो जब हम पहला पॉडकास्ट शूट करने वाले थे, तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा था? आप अपने उस फीलिंग को उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आई रिमेम्बर, मुझे लगता है कि जब हम लोग प्लान कर रहे थे, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने जो वो प्लान करके एग्जीक्यूट किया था फर्स्ट पॉडकास्ट वाला फेज। आई नो वी डिड नॉट डू गुड, वी बट वो गुड इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोगों में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, हमें आगे पीछे कुछ नहीं पता है, हम लोग सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक पीपल विल सी that we are no doubt making errors, but we are trying to correct ourselves on daily basis. हम लोग कुछ ना कुछ करेक्शन हमें एक होता है ना रेगुलर बेसिस पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई थिंक विल डू इट गुड समडे। तो वो चीज है। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस तो चाहिए होता है कि आपको पता है आपको नहीं आता है, लेकिन आप करना चाहते हो। बट हाँ, एक टाइम के बाद ये कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेकर जाएगा, बट कुछ टाइम के लिए ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, बिकॉज you have to accept yourself that you have a flaw. You are not expert, but you still want to be in front of people. And I think worst बोलो या best part बोलो, कैमरे के पीछे सब चलता है। आप 10 लोगों से बात कर सकते हो, आप किसी से भी इंटरैक्ट कर सकते हो, आप किसी से 4 सवाल पूछ सकते हो, बट वही चीज जब कैमरा के सामने करनी होती है, थिंग्स आर लाइक कंप्लीटली डिफरेंट। और जब आप फुल टाइम वही वैसा ही कोई काम चूज कर लो जिसमें कि बस कैमरा और लोगों के सामने जाने का ही काम है, तो नो डाउट देयर इज एन एंटिसिपेशन। और मुझे लगता है आप लोगों को तो मैंने जो छोटा सा एक एक्सरसाइज भी दिया था टू लाइक टू हेल्प यू सी कि इवन इफ थिंग्स गो बैड, आई विल बी देयर टू मैनेज इट। तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि लाइक विल पीपल विल थिंक बैड ऑफ अस, या हम लोग कुछ कर लेंगे। वो चीजें नहीं थी दिमाग में। हाँ, ये थोड़ा सा एंटिसिपेशन जरूर था, बिकॉज ऑन कैमरा था, पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस नहीं, स्क्रिप्टिंग का कोई आइडिया नहीं, क्वेश्चंस का कोई आइडिया नहीं, गेस्ट सारे अलग अलग फील्ड के, तो वो चीजें होती है। लेकिन आई थिंक फैक्टर थ्रू आउट मेरे साथ, मुझे लगता है कि पॉडकास्ट की प्लानिंग में, जब व्हेन वी वर थिंकिंग ऑफ पॉडकास्ट, मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी एक ही मोटिवेशन था, अभी भी एक ही है, कि stories, when you listen to the journeys of people, when you listen to the stories of people, they influence you, they have an impact on your mind। क्योंकि बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप अपनी सोसाइटी का ही हमारा एग्जाम्पल हम लोग ले लें, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, 4 लोग आके उसको जरूर सुना देंगे, अरे पता है वो वहां गया था ना, उसका भी वैसे ही पैर टूट गया था, वो वहां गया था ना, वो ऐसे करने गया था, उसके साथ भी यही हो गया था। सो उसमें से शायद कोई भले ही एकाध होंगे जो उसको कुछ पॉजिटिव स्टोरी देंगे कि हाँ कोई बात नहीं, उसके साथ भी ऐसा हुआ था लेकिन वो ठीक हो गया था। अच्छी कोई या बुरी स्टोरीज हैव एन इम्पैक्ट। 10 बुरी स्टोरी के बीच में अगर एक स्टोरी अच्छी मिल जाती है, तो हो सकता है कि आप लोग याद रखेंगे, लेकिन लोग याद जरूर रखेंगे अगर जिसके ऊपर उस स्टोरी का इन्फ्लुएंस पड़ेगा। व्हेन यू आर इन अ बैड मूड, व्हेन यू आर हैविंग अ बैड डे, when you're going through something like which is not completely unexpected in your life, and उस time पे अगर 1% भी motivation मिल जाती है, तो I think that works like wonders, and that is what I want to do, connecting people with our story। अरे वो name stories है, लेकिन हर story में एक journey होती है, और मुझे लगता है कि ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो कि आई थिंक वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट अगेन, एंड आई थिंक विल प्लान अ लॉट ऑफ मोर सेशंस विद आई थिंक अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गेस्ट्स।
ओके, सो अक्टूबर में जो हमने स्टार्ट किया था वो इनिशियल फेज था, और अब के सिचुएशन में आपको क्या फर्क नजर आता है, और आगे चल के हमारा वेंचर कहाँ जाएगा इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है? प्लान तो आप लोग सबको पता है, ठीक है। और अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्ट में भी जो है हमने जब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली हम लोगों ने एक होता है ना कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं ले लिया था कि हमें बिल्कुल ये गोल अचीव करना है 6 महीने के अंदर। जब स्टार्ट किया था तो हमने यही सोच के स्टार्ट किया था कि लेट्स सी 1 महीना कर पाते हैं या नहीं, फिर उसके बाद लेट्स सी 3 महीने का टारगेट है, 3 महीना कर पाते हैं या नहीं। देखिए स्टोरीज कलेक्ट करना, कुछ सोच लेना इज वन थिंग, व्हेन यू गेट इनटू एग्जीक्यूशन दैट इज अ होल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। आपको स्टोरीज कलेक्ट करना है, आपको प्लानिंग करनी है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट। तो ये छोटे छोटे गोल मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और हम लोग उतना इनपुट दे रहे हैं तो कंसिस्टेंट रह पाए हैं कि अभी हमने जो है वो 7-8 महीने कंप्लीट कर लिए हैं विदाउट एनी गैप। हमने अपने प्लान में कोई चेंज नहीं किया, हमने आई थिंक शॉर्ट नोटिस कुछ काम किए हैं, कुछ स्टोरीज किए हैं, बट वी हैव नॉट गॉन विदाउट अ स्टोरी एट एनी टाइम। तो ये कंसिस्टेंसी आई थिंक हमें बहुत आगे तक ले जाएगी अगर हम लोग इस एफर्ट डालते रहे तो। दैट इज व्हाट आई बिलीव। एंड ऑफ कोर्स जैसा लास्ट में मैंने बोला कि देयर स्टोरीज जो है वो हर कोई सुनना चाहता है, हर किसी की लाइफ की कुछ ना कुछ मेमोरी होती है स्टोरी से रिलेटेड। We just want to hit that particular spot for every person that comes across our videos. Okay, so it's over to you, Swati, if you want to ask something. Okay, so I want to ask some funny questions. Like हमारी जो इंटरनल टीम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हर एक टीम मेंबर के लिए एक वन गुड एंड वन बैड सिचुएशन बताओ, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं। Don't start with me. Okay, let's start with Akash. Since he is not here, I think I mean जो best part था, he has been like trying, no doubt he has been trying to adapt to our team. उसके लिए भी ये experience बहुत नया है, full time job नहीं है, बट जैसा काम पड़ता है, हमें कभी भी काम पड़ता है, he gets available, he is trying to be available. तो मुझे लगता है ये उसका strength है, ये उसकी positive है। हाँ, नेगेटिव ये जरूर है कि उसको फ्रीडम, जो मैं जैसे कह रही हूँ कि हमारे हर टीम मेंबर को एक होता है ना, लाइक आई वांट देम टू बी फ्री टू डू देयर वर्क, वो उस फ्रीडम को से अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि होता है ना, जैसे कि अगर किसी को बहुत टाइम तक जैसे बैंगलोर वगैरह में चले जाओ या ट्रैफिक वाले रोड में चलाने की आदत हो, तो उसको खाली रोड भी मिल जाएगा तो विल नॉट बी एबल टू गेट दैट स्पीड। तो आकाश के साथ वैसा हो जाता है कभी कभी कि उसे फ्रीडम मिल जाती है तो वो समझ नहीं पाता है कि काम अभी करे या बाद में करे। तो आई थिंक ये उसका वीकनेस है। उसके बाद फिर आई थिंक अगर चलो फर्स्ट पे नहीं आता, स्वाति सेकंड नंबर पे आता है तुम्हारे पे, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हारा जो गुड पार्ट है वो पीपल इंटरेक्शन है, यू कैन मिक्स अप विद पीपल। और आई थिंक थोड़ा सा और एडवांटेज ये है दैट थोड़ा सा एक फन एलिमेंट मिक्सअप कर देना, या अपने नेचर में एक वो फन पार्ट होना, एक थोड़ा सा चाइल्डिशनेस होना, दैट इज अ गुड पार्ट अबाउट यू। और नेगेटिव में ये है कि तुम्हारा फोन कभी टाइम पे नहीं कनेक्ट होता है। I was thinking the same. I was expecting the same. The negative point. एक्सपेक्टेशंस नेगेटिव ही बताया ये मैंने कि तुम्हारा जो है फोन कभी टाइम पे तुम मतलब आई थिंक योर फोन इज आई मीन तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तुम्हारे फोन के साथ में, तुम लोग कभी एक डायरेक्शन नहीं होते हो, हमेशा पता नहीं कौन कौन से डायरेक्शन में होते हो, कभी कनेक्ट नहीं हो पाते हो। दैट इज द इशू दैट वी फेस। अब आते तबस्सुम पे। I will try to figure it out. ओके, हाँ, अब तबस्सुम पे आता है। तबस्सुम के साथ में अच्छा ये है कि आप मैनेज कर लेते हो, आपके साथ सिचुएशन एडिशनल जो है वो होती है, नो डाउट, बट वो आप मैनेज कर रहे हैं मल्टीपल चीजें। नेगेटिव ये है कि आपको एक्सपोजर वाइज या थोड़ा सा जो मुझे लगता है काम करने की जरूरत है वो होता है कि आपको सिंस यू आर नाउ एट अ प्लेस जहाँ पे आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपको यू नीड टू बी लाइक मोर रिस्पॉन्सिव टू पीपल, आई थिंक। मतलब ऐसा होता है बिकॉज हमें पता है कि हम लोग सब अपने अपने जगह पे इंट्रोवर्ट्स हैं, वी आर नॉट वेरी सोशल, वी आर नॉट वेरी आउटगोइंग, वी डू नॉट कनेक्ट विद पीपल इजीली।
लेकिन आई थिंक व्हेन वी कनेक्ट विद गेस्ट तो हमें उन चीजों को थोड़ा सा, आई थिंक हम लोगों को अपने लेवल पे उन चीजों को थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग अपना वो इंट्रोवर्ट पार्ट को एक अलग रखें, और जब गेस्ट से या किसी से भी कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको हमारी पर्सनालिटी का वो साइड ना दिखे जो हम कैमरे के बाहर है. तो आई थिंक दिस इज Definitely, I'm working on that, and I think I'm going to improve. डेफिनेटली हम लोग सब इम्प्रूव कर लेंगे. आई नो. Yeah, we need improvement. So my next question is, if you could rename yourself based on any object or any concept, what would it be? बहुत ही आई थिंक अप्रोप्रिएट नेम है जो मुझे लगता है कि आई थिंक आई कैन बी दैट, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलूं, मार्केट चली जाऊं, कहीं चली जाऊं, मेरी नजर हमेशा वर्ड्स पे, नाम पे, दुकानों के नाम पे, उनकी स्पेलिंग्स पे, ग्रामर पे, इन्हीं चीजों पे होती है. एंड आई थिंक आई विल बी वेरी अप्रोप्रिएट एज एन ऑटो करेक्ट इफ आई कॉल माई सेल्फ दैट, क्योंकि पता नहीं क्यों ये लोगों को नोटिस नहीं होता, मेरी नजर पहले उन्हीं चीजों पे जाती है कि हाँ देखो इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, हाँ देखो वहाँ पे उसका ग्रामर गड़बड़ है. एंड आई थिंक द पीपल अराउंड मी दे आर वेरी मच अवेयर दैट इफ आई गो आउट आई विल बी डूइंग दैट. तो उनके हिसाब से मेरी वो पहले ही कॉन्शियस होते हैं कि देखो इसकी नजर इधर उधर नहीं होनी चाहिए. तो आई थिंक या ऑटो करेक्ट तो मेरे नाम पे बहुत सूट करने वाला है. I think I can rename myself that. So next question, what is the funniest and most unusual name you have came across during being searching for another thing? I do not have an answer to this. बोलने की बहुत गंदी बीमारी है मुझे, तो मैं नाम तो बहुत हूँ बट मुझे याद नहीं रहते हैं. अभी अब याद वो ही रहता है जिनकी मैं स्टोरीज कलेक्ट करती हूँ. उसमें पानी तो नहीं है, हाँ उसमें से वो अब चूंकि स्टोरीज हम कलेक्ट कर लेते हैं, जर्नी से कनेक्ट हो चुके हैं, तो वो मैं अनयूजुअल इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि वो सबके पर्सनल एक्सपीरियंस है. तो दे विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर द पीपल हु हैव क्रिएटेड दोज नेम्स. I'll skip this. Okay, so if you give a humorous nickname to each team member, what would they be and why? फिर से आकाश से शुरू करते हैं क्योंकि वो यहाँ नहीं है. आई थिंक बेचारा वो पहला इंसान है जो हमारी टीम में मेल मेंबर है. हमारे अलावा भी जो फीमेल मेंबर भी हैं हमारे पास, तो वो चाह करके भी ज्यादा बोल नहीं पाता है. तो मुझे लगता है कि उसको जो नाम मैंने दिया था वो बहुत फिट था उसके लिए, विच इज द सिचुएशनल इंट्रोवर्ट. तो हो सकता है वो पर्सनल लाइफ में इंट्रोवर्ट ना हो, बट चूंकि उसका एनवायरनमेंट और ग्रुप हमारे जैसा है तो वो सिचुएशनल इंट्रोवर्ट हो सकता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इन लोगों के बीच में भाई कैसे बोला जाए. अब हम लोग चुप हो तो वो कुछ बोले, तो आई थिंक उसके लिए ये नाम बहुत फिट है. और दूसरा जो हम लोग हैं, तो मुझे लगता है हम लोग तीनों का अलग अलग नाम, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है. मुझे लगता है जो हमारे लिए जो 16.5 एम्पियर नाम सोचा था हमारे लिए वो फिट है, क्योंकि हम लोग इतने यूनिक और इतने अलग हो गए कि हमारे टीम में हर कोई फिट हो नहीं पा रहा है. आई थिंक अब तो 7-8 महीने में जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट टीम वाइज करके देखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो हर किसी का इन्वॉल्वमेंट या हर किसी का एक होता है ना, इसमें हमारे साथ एडजस्ट हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि 16.5 एम्पियर्स एक बहुत अनयूजुअल सॉकेट हम लोग हैं, हर कोई फिट नहीं हो पा रहा है. जो फिट हो पाएगा वो बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा. तो आई थिंक ये हमारे लिए बहुत सही है नाम. आई थिंक literature wise we are doing justification of title. So next question is that what is the most amusing or unexpected story you have discovered behind a seemingly ordinary name? Okay, I'll pass this. So क्योंकि I don't think I have anything in my mind right now related to this. अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो मुझे कुछ याद आ जाए. अदरवाइज आई थिंक या ऐसा कुछ याद नहीं है, हम लोग रिकॉर्डिंग के बाद सोचेंगे इस पे. Okay, so one last question. आपको इसका आंसर देना पड़ेगा एक्चुअली. Oh God. If Untimables is the team of superheroes, so you have to name each member as a superhero. मुझे ऐसा लगता है I will name you. Okay, ये एक्चुअल में देखो इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है. आई डोंट नो, तुम लोगों ने सारा बदला निकाल लिया है मुझसे आज के क्वेश्चन. बट आई थिंक
Just No, because you had mentioned that, just because you had mentioned that you can ask whatever you can, so we are asking whatever we are. So you've taken full advantage of the situation and you have asked, oh my god, how many questions and और वो खत्म ही नहीं हो पा रहे questions. तो सुपर हीरो में I think टीम का नाम तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा सोचूंगी. अनरैपिंग लेबल्स ही हम लोग नाम रखेंगे, वो फिर नाम क्यों कुछ और रखेंगे. हाँ, बट टीम मेंबर में मुझे लगता है कि जब आप विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं तो मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि एक होता है ना, तबस्सुम के पास जो है वो सारा काम दे दिया है, जैसे होता है ना, हाउ डू आई से, मतलब वो दुर्गा मॉडर्न डे दुर्गा माता टाइप्स की आपके सारे हाथ में अलग अलग रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स दे दिए हैं, आप सारा सेट कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपके पास में वो दे दे, आपके हाथ में वो हो जाएगा. आई थिंक स्वाति के पास में जो है वो जितना, चूंकि इतने लोगों से इसको बात करनी है, इतने लोगों से होता है ना, इधर एजेंसी भी मैनेज करनी है, इधर लोगों को भी मैनेज करना है, इधर शेड्यूल भी बनाना है, इधर ये भी करना है, इसके हाथ में जो लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, फोन सब दे दो, इसके पास में वैसा सा सेटअप हो जाएगा. आई थिंक टेलीकम्युनिकेशन का पूरा ऑप्शन इसके पास हो जाएगा, आपके पास में रिकॉर्डिंग का सेटअप हो जाएगा. आकाश को लगता है कि आकाश को एडिटिंग के सॉफ्टवेयर दे सकते हैं हम लोग सुपर पावर में, वो ऐसा कुछ यूज कर सकता है. एक हाथ में अडोबी, एक हाथ में जो है वो प्रीमियर प्रो, एक हाथ में पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर मल्टीपल सारे मिक्स करके वो यूज कर रहा है, एडिट कर रहा है वीडियो, हमारे ऐसे कुछ अच्छा सा निकल के आ रहा है. इन्हें कुछ नहीं आता फिर भी एडिट करके वो कुछ बहुत अच्छा सा क्रिएट करके दे रहा है ऐसा. हाँ, ऐसा आई थिंक आपके लिए ऐसा कि फिर आप हम सबको हैंडल कर रहे हो एक हाथ से पकड़ के. करेक्ट. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. वो याद आ गया, वो जैसे पहले के पेपर में वो आर.के. लक्ष्मण की दुनिया का जो कार्टून आता था ना, वैसा था. तो मेरे पास 4 आते हैं, मेरे पास 4 टीम मेंबर्स है, वो 4 नहीं 3 ही लोग हैं. 3 लोगों को ऐसे पकड़ करके दो, किसी को कॉलर से, किसी को सर से, किसी को ऐसे पीछे से ऐसे पकड़ करके जो है टांग करके, और लाइक मैं मैनेज कर लूं. बहुत लाइक आई एम हैविंग अ वेरी नाइस विजुअलाइजेशन ऑफ दिस. ओके, और क्वेश्चंस बचे हैं. I think please get this over with. This was the last and was very funny. Okay, so I think खत्म करते हैं. बहुत क्वेश्चन हो गए बाप रे. मुझे लगता है पता नहीं कितने क्वेश्चन और थे आप लोगों के स्टोर में मुझसे पूछने के लिए. There are lots of questions, but we had limited our questions here. And this was not easy. आपने एक मेमोरी शेयर किया था आपके आर फायर स्टार्ट करने का, तो मुझे भी ये याद आ रहा है कि लाइक फर्स्ट टाइम कैसे मैंने विजिट किया था आपका घर. लाइक आपने कॉलेज जब छोड़ दिया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ठीक है हम लोग क्या करने वाले एंड ऑल. एंड हम लोगों का अराउंड 20 to 25 बच्चों का ऐसा ग्रुप था. सबने डिसाइड किया था कि हम जा रहे हैं आपके घर. मैंने आपको कॉल किया था कि मैम हम लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जाम था. आपने कहा कि हाँ ठीक है सब आ जाओ. फिर पूछा भी नहीं कि हाँ कितने लोग हैं, ठीक है आ जाओ. एंड 20 लोगों से वो कट होकर लास्ट में 3 लोग हो गए थे, जो एक मैं और मेरे 2 बैचमेट थे. हम लोग 3 लोग गए थे. स्टिल उसके बाद भी आपने एक वो अप्रिशिएशन दिया और फिर एक वो अप्रिशिएट भी किया कि ठीक है चलो हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि नहीं मैम क्लासेस स्टार्ट करना है. तो आपने वो 3 बच्चों से ही लेकर ठीक है चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं. फिर सब लोग आगे बढ़े. तभी भी याद है कि हम लोग लगभग 2-3 दिन तक ट्यूशन ढूंढ निकल रहे थे कि हमें कौन सा प्लेस अच्छा होगा. ऐसा भी हुआ था कि कोई प्लेस सेलेक्ट होने के बाद एक स्टूडेंट कह रहा है मैम ये मेरे घर से. तो इसलिए आपने वो चीज मैनेज किया था कि सभी लोगों को वो एक प्लेस पर इजी हो, सब लोग आ सके वहाँ पे. तो मुझे अभी भी एक्चुअली वो सारे मोमेंट्स याद है. एक्सपीरियंस ही है सारा अल्टीमेटली, क्योंकि जिनके लिए आप कर रहे हो थोड़ा सा तो आई थिंक उनको कंसिडर करना पड़ेगा. मे भी पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा सोचती हूँ कम सोचती हूँ, बट पता नहीं मुझे उस टाइम में जो जरूरत लगा मैंने कर दिया. I think that's how things are with me. अच्छा लगा आपसे बात करके मैम. Definitely we had enjoyed the most. I can see that. Okay.